যেন 20 জুলাই আন্দোলনলৈ ভয় মোদী চৰকাৰৰ আৰু তাৰ পাছতে আজি পুৱা এই পৰিৱেশ। নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীত হৈ থকা কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিবাদে দেশ জোকাৰিছে। যন্তৰ মন্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীত শনিবাৰে পুৱা 7 বজাত সৃষ্টি হ'ল অভূতপূৰ্ব পৰিস্থিতিৰ। হঠাৎ চিভিল ড্ৰেছত আহিল বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল। বিগত 20 দিনে আমৰণ অনশন কৰি থকা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা সমাজকৰ্মী সুমন ৱাংচুকক লৈ গৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱালে। অসামৰিক পোছাকত অহা আৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰচণ্ড হতাহতি ঠেলা হেঁচা লিপ্ত হ'ল অনশনস্থলীত উপস্থিত থকা শিক্ষাৰ্থী তথা কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যসকল। কিন্তু অতি সুপৰিকল্পিতভাৱে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বগা কাপোৰে ঢাকি এম্বুলেন্সত লৈ গ'ল সুনম ৱাংচুকক। পুৱা জনসমাগম কম হৈ থকাৰ সুযোগ ল'লে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। বাধা প্ৰদান কৰা শিক্ষাৰ্থীক লাঠিচাৰ্জ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে। সিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকেকো অপদস্থ কৰিলে। तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीटकर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीटकर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। যিগৰাকী সোনম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনৰ বাবে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টি আন্দোলনে দেশব্যাপী সৰ্বস্তৰৰ জনতাৰ সমৰ্থন লাভ কৰিছে, সেইগৰাকী ব্যক্তিক আজি বলপূৰ্বকভাৱে অন্বেষণস্থলীৰ পৰা লৈ গৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱালে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। সোনম ৱাংচুকৰ অনুপস্থিতিত আজিৰ পৰা আমৰণ অনশন ঘোষণা এতিয়া অভিজিতৰ। 20 জুলাইত সংসদ ভৱন যাত্ৰা কাৰ্যসূচীও বাহাল থাকিব বুলি ঘোষণা অভিজিতৰ। जैसे सोनम सर यहाँ पर खुद सफर करके 20 दिनों से बैठे हुए थे और जिन जिन लोगों को लगता है कि वो इस प्रोटेस्ट को खत्म कर सकते हैं, हमारी आवाज दबा सकते हैं, उन लोगों को बता दो अब आवाज दबेगी नहीं हमारी। ইফালে 20 জুলাইত প্ৰস্তাৱিত সংসদ ভৱন যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সোনম ৱাংচুক সুস্থ হৈ নুঠিলে তেওঁৰ ঠাইত যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে ৱাংচুকৰ পত্নী গীতাঞ্জলীয়ে। 20 জুলাই সংসদ ভৱন যাত্ৰা কাৰ্যসূচীলৈ চৰকাৰে ভয় খোৱা বুলি মন্তব্য ৱাংচুকৰ পত্নীৰ। मंडे मॉर्निंग यात्रा जो निकलनी है, अगर वो निकलेगी तो वो जस्ट दिल्ली में नहीं निकलेगी, पूरे देश में निकलेगी, क्योंकि हर शहर ये प्लान कर रहा है कि वो उसी वक्त वो भी यात्रा करे। और अगर सोनम की तबीयत, मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कुछ खराब है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सोनम ना भी ज्वाइन कर सके वो यात्रा को, तो मैं उनको रिप्रेजेंट करते हुए वो यात्रा को लीड करूंगी और वो होगा। मंडे को जो प्लान है वो ऐसा नहीं है कि सोनम को अगर वहां से जबरदस्ती ले आए हैं तो वो रोक सकते हैं। শুকুৰবাৰৰ দিনটোলৈকে কেৱল শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত অটল হৈ থকা কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টীয়ে এতিয়াৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পদত্যাগৰ দাবীত আন্দোলন কৰিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে অভিজিৎ দীপকে। पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस नहीं, आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो आप। और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। সম্প্ৰতি দিল্লীৰ সফদৰজং হাস্পতালত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ৰখা হৈছে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা সমাজকৰ্মী সোনম ৱাংচুকক। বিগত 20টা দিনে কোনো খাদ্য গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে সোনম ৱাংচুক যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছিল আৰু স্বাস্থ্যৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল। लंबी उपवास की वजह से वो थोड़े वीक हैं और थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उनके हमने सारे वाइटल मॉनिटरिंग चल रही है, उनके ब्लड टेस्ट हुए हैं, उसमें ये दिख रहा है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन है। उसके लिए हम रिक्विजिट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल हैं।
যাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে পুৱাই আজি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰালে সোনম ৱাংচুকক। আদালতৰ নিৰ্দেশ পালন কৰিহে ৱাংচুকক হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা বুলি বিবৃতি দিল্লী আৰক্ষীৰ। কিন্তু আদালতে নিয়মীয়াকৈ চিকিৎসাৰ প্ৰদানৰহে নিৰ্দেশ দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বেচ্ছাচাৰী শাসন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে এতিয়া বিৰোধী নেতা সাংসদসকলে। লগতে এই ছাত্ৰ আন্দোলনে মোদী চৰকাৰ পতনৰ ইংগিত দিলে বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। सरकार 20 दिन तक सोई रही, उनका पूरी बॉडी जो है उनके ऑर्गन फेल हो गए। कोई बात उनकी जो रखी थी सोनम वांगचुक जी ने उसका चर्चा नहीं हो गई। अगर इतनी उनके प्राण की आपको अहमियत थी तो आप बात करनी चाहिए थी, कुछ बातें माननी चाहिए थी, कोई डेलीगेशन आना चाहिए था, लेकिन आपने उठाकर उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया। ये एक प्रकार से जोर जबरदस्ती और तानाशाही है। मोदी जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जो संसद मानसून सत्र आरंभ होने वाला है, उस दौरान वो पार्लियामेंट का घेराव करेगी। उसी से डर कर केंद्र सरकार ने शायद ये कदम उठाया है। अगर उन्हें सोनम वांगचुक की इतनी फिक्र होती तो निश्चित ही वो उनसे वार्ता करते, छात्रों की मांग को सुनते, उसका समाधान निकालते, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है केंद्र सरकार। हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक के साथ वार्ता हो और वार्ता के बाद सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़े। और ये जेएनजी की आवाज़ को केंद्र सरकार जो दबाने की कोशिश कर रही है, हम इसका विरोध करते हैं। हम सभी उनके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। উল্লেখযোগ্য যে অনশনৰ ফলত সোনম ৱাংচুকৰ শাৰীৰিক অৱস্থাৰ দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছিল আৰু তেখেতক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱাটো জৰুৰী আছিল। নেশ্যনেল ব্যুৰো, অসম লাইভ 24।